Shrirupam Sarvajata Sarvagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sarvadvitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitam Sat He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Saptakanchana Gaurangi Radhe Vrindaveshwari Vrisabhasute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Pasunduryaye Vacha Patitana Pavanabhyo Vaishnava Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Every town and village, हर एक नगर और गांव में, it is from Chaitanya Bhagavat, यह श्लोक चैतन्य भागवत में आता है। Antya Lila, अंत्य लीला chapter 4, अध्याय 4, text 126. श्लोक संख्या 126 चैतन्य भागवत का ये श्लोक है। Mostly quoted by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बहुत बार बारंबार अपने लेक्चर, अपने पुस्तकों में कोट किया है। पृथ्वीते आचे जता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरिवे मोरा नाम. In every town and village throughout the world, हर एक गांव, नगर, कस्बे में, पूरे संसार में, said Lord Chaitanya Mahaprabhu, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, the chanting of my holy name will be heard. मेरे नामों का कीर्तन पूरे संसार में हर एक गांव, नगर, कस्बे, शहर में होगा। Srila Prabhupada said something which looked like he was insulting his god brothers about this place. श्रील प्रभुपाद जी एक बार ऐसी बात बोल रहे थे अपने गुरु भाइयों से, उसको सुन के लग सकता है कि वे अपने गुरु भाइयों का अपमान कर रहे हैं। Because they were not able to understand that it is possible. क्योंकि श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई इस बात को पचा नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये श्लोक संभव है वाकई में। Their understanding was that उनकी समझ ये थी कि Krishna is limited to India. कृष्ण का प्रचार मात्र भारत में ही हो सकता है। So a holy man preaching Krishna consciousness should not preach outside India. तो एक साधु को जो कृष्ण का प्रचार कर रहा है उसे भारत देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, It's within India. बस भारत के अंदर होना चाहिए। So it is an offense for a holy man to travel out of India. तो उनकी समझ ये थी कि एक साधु को 7 समंदर पार करके भारत से बाहर भी जाना चाहिए, ये अपराध हो जाएगा। But one day I saw एक दिन मैंने देखा a very big banner, एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बैनर लगा था, Jagat Guru Satsang Swami. उसमें लिखा था जगत गुरु श्री श्री स्वामी। He had never left his village.
लेकिन वो स्वामी आज तक अपने गांव के बाहर कभी नहीं गया था And he didn't leave the village before he left the body. और वो इस पूरे जीवन में अपने गांव के बाहर कभी जाएगा भी नहीं, But he got the title Jagat Guru. लेकिन उसको उपाधि क्या मिली है? जगत गुरु। So how is Jagat Guru? जगत गुरु कैसे हुआ? Just the name? मात्र नाम से रह गया जगत गुरु। So many people think like that. तो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। So when Chaitanya Mahaprabhu is saying, my holy name should be chanted all over the world. How? How? तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बोली है शास्त्रों में कि मेरे पवित्र नाम का कीर्तन पूरे संसार में हर जगह होगा, तो कैसे होगा? कौन करेगा? Anyway, there are certain things in the scriptures which are only inside the scripture. You don't see it outside. कुछ चीजें हाँ ऐसी होती हैं शास्त्र में जो कि वो हम मात्र शास्त्र में ही देखते हैं, उसको हम बाहर आचरण के रूप में नहीं देखते। So they were thinking, this is just one of those things. तो उनके गुरु भाइयों को लग रहा था कि ये भी शास्त्र में ऐसे ही लिखा है, बस ये शास्त्र में ही रहेगा, सही में नहीं हो पाएगा। And Srila Prabhupada told his god brothers, और श्री प्रभुपाद जी फिर अपने गुरु भाइयों को बोले, it is possible, ये संभव है, but not from all of you. लेकिन तुम लोग इसको नहीं कर पाओगे। How does it sound like? ऐसा सुन के हमें कैसा लगेगा? A god brother is telling you like that. अगर आपका गुरु भाई आपको ऐसे बोले, How will you feel? आपको कैसा लगेगा? False ego. देखो कितना अहंकारी है, कितना घमंडी है ये। He is taking our guru's position now. ये हमारे गुरु का पद अभी से ही ले रहा है, गुरु बन रहा है। But Srila Prabhupada was not insulting his god brothers. लेकिन श्री प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों का अपमान नहीं कर रहे थे। Did you see what Prabhupada did? आपने देखा क्या प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? Did you see what Prabhupada did? क्या आप देख पा रहे हैं? ऐसा बोल के प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? Chaitanya Mahaprabhu's instruction is, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि every town and village हर एक कस्बा, हर एक गांव, of the whole world. पूरे पृथ्वी में, संसार में। But लेकिन Srila Prabhupada, श्री प्रभुपाद जी, he expanded the instruction. श्री प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, इस आदेश से और आगे निकल गए हैं। Now, इस समय the preaching of the holy name is not only in towns and villages. पवित्र नाम का संकीर्तन प्रचार मात्र गांव और शहरों तक ही नहीं रह गया है, Islands. द्वीप में पहुंच गया है। We are preaching in Mauritius Island, हम लोग मॉरिशस के द्वीप में प्रचार कर रहे हैं, Seychelles Island, सीचेल्स आइलैंड में and प्रचार कर many रहे हैं। other islands. ऐसे बहुत सारे द्वीपों में हो रहा है प्रचार। And also और here यहाँ पर in India, Mayapur here, भारत में मायापुर से is Solis Bhakti Purushottam Maharaj परम पूज्य भक्ति पुस्तक महाराज is preaching प्रचार कर रहे हैं jungle, जंगल में, jungle preaching. जनजातियों को जंगल में प्रचार कर रहे हैं। You see what Prabhupada did? आप देख रहे हैं क्या किया प्रभुपाद जी ने? He expanded everything. चैतन्य महाप्रभु के आदेश को और बड़ा कर दिया, गांव से लेकर जंगल चले गए। That is the duty of a bona fide disciple. एक प्रामाणिक शिष्य का यही कर्तव्य होता है, अपने गुरु के आदेश को और विस्तार से बढ़ाए। So Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोले, Krishna is not just for India. कृष्ण मात्र भारतीयों के लिए ही नहीं है, He is for everyone वे समस्त जीवों के लिए हैं, because He is God. क्योंकि वे परम भगवान हैं। In Bhagavad Gita, भगवद गीता में He affirms, वे कहते हैं, Aham Bijaprada Pita. हम बीज प्रदा पिता, I am the seed-giving father of all living entities. मैं समस्त योनियों में बीज प्रदान करने वाला परम पिता हूँ। Not just the living entities in the human society, मात्र मनुष्य योनियां ही नहीं, but also all other living entities, समस्त योनियों का मैं पिता हूँ। like the aquatics, जैसे पानी में रहने वाले the insects, जीव जंतु, the plants, वृक्ष, the birds,
पक्षी and the beasts. और जानवर। The holy name should be distributed to all living entities. यह पवित्र नाम और संकीर्तन आंदोलन सारे जीवों में बांटना चाहिए। And he did it. और ऐसा किया प्रभुपाद जी ने। He spread the holy name all over the world. प्रभुपाद जी ने भगवान का पवित्र नाम पूरे संसार में फैला दिया। Everywhere you go in the world today, आज आप जाएंगे पूरे विश्व में कहीं पर भी the holy name is going on. आपको भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। Even यहाँ तक कि in places where there are no temples. ऐसे स्थान पर भी जहाँ हरे कृष्ण मंदिर नहीं है, Christian consciousness, the holy name is going on there systematically. वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कृष्ण भावनामृत भगवान का नाम चल रहा है। Chaitanya Mahaprabhu is the father of all living entities. चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों के परम पिता हैं। Aham Bija Pradapita. हम बीज Bija पिता। Pradapita. Pradapita. He didn't say, I am the seed giving father of India. He don't mention it. कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं मात्र भारतीयों का पिता हूँ, मैं भारतीयों को बीज दिया हूँ बस। I am the seed giving father of human beings. He don't mention it. ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं मात्र मनुष्यों को बीज दिया हूँ, फिर उनका पिता हूँ। I am the seed giving father of all living entities. समस्त योनियों का मैं प्रदान करने वाला पिता हूँ। Everyone should be given a chance to hear the holy name. इसीलिए सबको अवसर देना चाहिए बराबर रूप से भगवान का नाम श्रवण करने का। Even those who cannot chant, जो जप नहीं करते उनको भी they can hear. वो कान से अपने सुन सकते हैं, Or या फिर they can see devotees chanting. जो सुन नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, वो देख सकते हैं भक्तों को They will get benefit. और उनको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। See devotees chanting the holy name. जैसे वो दिखेंगे भक्तों को कीर्तन करते हुए, They are amazed. वो बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे। What is this? ये लोग कहाँ से आए हैं? Devotees are chanting. भक्त कीर्तन कर रहे हैं, What is this? ये लोग कौन हैं? That has changed their whole life. मात्र आंखों से भक्तों को देखने पर उनकी सराहना करके उनके जीवन का सौभाग्य बदल जाएगा। For a moment, एक क्षण में, their life have changed completely. एक क्षण में उनका समस्त जीवन का कर्म बदल गया। At the time of death, अब मृत्यु के समय, when their movie is played, अब जब आपकी पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी गलत कर्मों की, it will get to this point. तो फिर वहां पर यमराज जी चेक करेंगे इस पॉइंट को। When they met devotees, अरे तुम तो भक्तों से मिले थे, thinking, तुम सोच रहे थे what is this? ये लोग कौन हैं? They will get stopped there. और वहीं पर यमराज जी अपना कैमरा रोक देंगे They leave the body. और वो भक्त को छोड़ देंगे। Next life, अगले जीवन में devotee. वो भक्त, वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा। हरि बोल। Even those who cannot chant, यहाँ तक कि जो जप नहीं कर पा रहे उनका ये हाल there होगा। are many entities who cannot chant, और ऐसे बहुत सारे जीवात्मा हैं जो जप नहीं कर सकते, but seeing devotees chanting, मात्र आंखों से भक्तों को देखकर कीर्तन करते हुए they will benefit from hearing उनको लाभ मिल जाएगा सुनकर and seeing devotees. और आंखों से देखकर भक्तों को। That is the beginning of the auspiciousness. और इस प्रकार उनके जीवन का सौभाग्य उदय हो जाएगा। So these activities of doing Harinam तो जो ये हरिनाम संकीर्तन है, ये काम should continue without obstruction. ये लगातार चलना चाहिए बिना रुके हुए, And we should encourage it everywhere और हमें प्रोत्साहित करना चाहिए सभी को सब जगह, by participating. और उसके लिए हमें स्वयं इसमें भाग लेना चाहिए। If we participate, अगर हम भाग लेंगे it will add to the strength of the name. तो भगवान के नाम की शक्ति से, When many people chant it, the more the potency. और जब बहुत सारे लोग साथ मिलकर जप करेंगे इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। So we should participate तो हमको भाग लेना चाहिए anywhere, हर जगह जहाँ भी हो रहा हो, and that will be beneficial for us, और ये सबसे पहले हमारा उद्धार होगा beneficial for everyone. और समस्त जीवों को लाभ पहुंचेगा, उनका उद्धार होगा। Everything is there in the Vedic culture.
सब कुछ वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, But this culture of Christian consciousness, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत का जो संस्कार है, सभ्यता है, समाज है, which is summarized in the Bhagavad Gita as it is, जिसको भगवत गीता में सार रूप में बताया गया है, have not been preached properly. इसको अभी तक अच्छे से इसका प्रचार नहीं किया गया है। Everyone had interpreted Bhagavad Gita in his own way. सब लोगों ने मनमाने ढंग से भगवत गीता पर टीका की है, To satisfy his own whims. अपने अपने तरीके से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। We are just trying for the first time हम लोग पहली बार प्रयास कर रहे हैं to present Bhagavad Gita as it is, भगवत गीता को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का, and it is becoming effective. और इसका प्रभाव फैल रहा है। So this is not a different role for the Vedic culture. इसीलिए हम कोई वैदिक संस्कृति की अलग भूमिका नहीं निभा रहे हैं। It is the actual role. ये तो हम असली वास्तविक भूमिका निभा रहे हैं। Nobody had tried for it. किसी ने प्रयास नहीं किया था। Therefore, Krishna has been unknown in the Western countries. इसीलिए आज तक पश्चिमी देशों के लोग भगवान कृष्ण से अज्ञात थे। But even though we have been attempting यद्यपि हम कुछ वर्षों से कर रहे हैं to introduce him for only a few years, कृष्ण भावनामृत का परिचय कुछ वर्षों में लोगों से करवा रहे हैं, still, फिर भी because Krishna is reality, क्योंकि कृष्ण वास्तविक हैं, Krishna consciousness is being accepted. इसलिए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया जा रहा है। So it is not a new role for the Vedic culture. तो वैदिक संस्कृति के लिए या कोई नई भूमिका नहीं है जो हम कर रहे हैं। The role is already there यह भूमिका तो पहले से ही मौजूद थी, to preach Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। That is Chaitanya Mahaprabhu's vision. यह चैतन्य महाप्रभु का दृष्टिकोण है। He says especially to people born in India. चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से भारत में जन्मे लोगों से कहा है। Adi Leela, आदि लीला chapter 9, अध्याय 9 text 41. श्लोक 41। Bharat Bhumite Manusya Janma Paila Ya Janma Sartaka Kari Khara Khara Upaka. Anyone who has taken his birth as a human being in India, जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है, Bharatvarsha, भारतवर्ष में, should make his life successful उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए and work for the upliftment of the whole world. और समस्त संसार के उत्थान के लिए उसे कार्य करना चाहिए। That is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु भारतवासियों को ये आदेश दिए हैं। It is an order, ये आदेश है, it is not an advice. ये सलाह नहीं है, आज्ञा है, आदेश है। It should be done. ऐसा होना ही चाहिए। In Bhagavatam 1:5-10, श्रीमद् भागवतम 1:5-10 Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोले हैं, the Indians are failed in their duty, therefore the whole world is in trouble. क्योंकि भारतीय लोग अपने कर्तव्यों से च्युत हो चुके हैं, हार चुके हैं, फेल हो चुके हैं, इसीलिए सारे संसार में इतने कष्ट हो रहे हैं। Does it make sense to us? क्या आप समझ पा रहे हैं? Indians fail. भारतीय अपने कर्तव्यों से गिर गए हैं। What is the result of their failure? और क्या हो रहा है उसके बाद? The whole world is in trouble. पूरे संसार में कयास है, Airport is shut down. सब कुछ खत्म हो रहा है। No flying anywhere. अब कहीं हमको नहीं मिलने भारतीय लोग बाहर। Why? क्यों? The philosophy of Krishna consciousness is not spread. क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है कष्ट पूरे संसार में, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं हो रहा है पूरे विश्व में। The holy name is not being advertised. भगवान के पवित्र नाम का प्रचार नहीं हो रहा है।
Many people do not know what is the chanting of the holy name. बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान के नाम का मंत्र जप करना चाहिए। Therefore, इसलिए we are acting in ignorance. इसीलिए हम लोग अविद्या में काम कर रहे हैं। And that is the cause of our suffering. और ये इसलिए हो रहा है और इसी वजह से हम कष्ट भोग रहे हैं। Ignorance अविद्या ही of the holy name भगवान के नाम का जप ना करने की अविद्या से is causing the whole problem around the world. पूरे संसार में इतने सारे कष्ट और विडंबनाएं हो रही हैं। So Chaitanya Mahaprabhu is giving the solution. चैतन्य महाप्रभु हमको हल प्रदान कर रहे हैं। Let my holy name be chanted all over the world. मेरे पवित्र नाम का कीर्तन पूरे विश्व में होना चाहिए। That's the solution. यही तो बस एक हल है। It will destroy ignorance. ये अविद्या का नाश कर देगा। To chant the holy name, भगवान के नाम का कीर्तन करना, you don't need a temple. इसके लिए मंदिर नहीं चाहिए, You don't need education. शिक्षा भी नहीं चाहिए, You don't need money. पैसा भी नहीं चाहिए, You don't need interpretation. कोई अनुवाद करना चाहिए। Philosophy, you need interpretation. ज्ञान को सुनने के लिए कोई होना चाहिए अनुवादक, Chanting the holy name, no interpretation. लेकिन जप करने के लिए किसी भाषा में अनुवाद की जरूरत नहीं है। Anywhere, कोई भी कहीं से भी, anytime, किसी समय, anybody, कोई भी from any background कहीं से भी आ रहा हो, can chant the holy name वो भगवान के नाम का जप कर सकता है and get the full benefit. और पूरा फायदा उठा सकता है। So the chanting of the holy name is the solution for all problems. तो भगवान के नाम का कीर्तन ही सारी समस्याओं का एकमात्र हल है जड़ से। Intelligent person बुद्धिमान व्यक्ति को should चाहिए invest his best intelligence, best strength in chanting the holy name. एक बुद्धिमान व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष, उसको चाहिए कि वो अपनी संपूर्ण शक्ति, सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छी शक्ति को पूर्ण तरीके से भगवान का नाम का जप और कीर्तन करने में लगाए। Since the Indians failed, क्योंकि जब भारतीय अपने कर्तव्य से गिर चुके हैं, what is the hope? अब क्या आशा बचेगी? No hope? क्या कोई आशा है? No hope? क्या कोई आशा है? What is the hope? क्या आशा? Krishna consciousness की कृष्ण भावनामृत इस्कॉन इसकी होप है। Srila Prabhupada movement की श्रील प्रभुपाद आंदोलन बनाया है। the solution is ISKCON. अब पूरे विश्व का एक ही हल है, इस्कॉन, हरे कृष्ण आंदोलन। And Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोले, ISKCON is the incarnation of Krishna for now. प्रभुपाद जी बोले हैं, इस्कॉन भगवान कृष्ण का अवतार है इस संसार में, इस समय के लिए, इस युग के लिए। This is the incarnation of Krishna for now. ये भगवान कृष्ण का अवतार है इस समय अभी के लिए। Is it not true? सही है। Nothing has any benefit without the chanting of the holy name. क्योंकि कोई भी लाभ नहीं होने वाला है हमारे सारे कार्यों से बिना पवित्र नाम का कीर्तन के। A puja is not complete without the holy name. हमारी पूजा भी पूर्ण नहीं होगी बिना नाम जप के, कीर्तन के। Shukracharya, शुक्राचार्य जी not a devotee, वो भक्त नहीं है, doesn't chant Hare Krishna. वो हरे कृष्ण जप नहीं करते, But लेकिन he said, वो बोलते हैं any puja, कोई भी पूजा, sacrifice, कोई भी यज्ञ, mantras, कोई भी मंत्र which are performed जिनको हम करते हैं, with mistake, अगर उसमें गलती होती है, if अगर you chant आप जब करते हैं Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare, the mistake is amended. तुरंत सारी गलतियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। All faults are made complete. सारी कमियां दूर हो जाएंगी तुरंत। This is a non-devotee
glorifying the holy name. ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। So what does that mean for us who are chanting Hare Krishna? What does it mean for us? तो फिर जो हम लोग भक्त हैं, जो लोग भगवान के नाम का जप कीर्तन कर रहे हैं, हमारे लिए इससे क्या सीख मिलती है? We are chanting Hare Krishna. हम लोग नाम जप कर रहे हैं, Person who is not chanting जो नाम जप नहीं कर रहा है is telling you the importance of chanting. वो हमको बता रहा है भगवान के नाम का महत्व। So what does that mean for us? तो इससे हमको क्या सीख मिलनी चाहिए? You should take it more seriously. इससे हमें सीख मिलती है कि हमें तो और ज्यादा गहराई से इसको लेना चाहिए। He is not flattering us. वे हमारी चापलूसी नहीं कर रहे हैं। He is telling us the reality, the truth. शुक्राचार्य जी हमको सत्य बोल रहे हैं Because क्योंकि he has knowledge. उनको पूर्ण ज्ञान है। He knows the potency of the holy name. उनको पता है भगवान के नाम की जप में कितनी शक्ति होती है। He has been training, teaching demons. और वे असुरों को प्रशिक्षण देते रहे बहुत सालों से। So he knows the potency of the mantras he has been chanting. उनको सारे मंत्रों की पूर्ण शक्ति का पूरा भान है, ज्ञान है। And और all the mantras he knows. सारे मंत्र उनको पता है जो He singled out the Maha Mantra as the best. उन्होंने कहा इन सारे मंत्रों में से जो भगवान का पवित्र नाम है महामंत्र वो सर्वोत्तम है। And Chaitanya Mahaprabhu is saying, तो बोल रहे हैं let this be spread everywhere. ऐसा ही मेरा पवित्र नाम महामंत्र पूरे संसार में फैलना चाहिए। Everyone should participate in it. सारे के सारे लोग इसमें भाग लेना चाहिए, Knowingly or unknowingly. जाने और अनजाने सभी। We have been given chance. हमको मौका मिलना चाहिए। Sometimes कभी कभी in Nigeria, नाइजीरिया में sometimes कभी कभी when we are doing Harinam, जब हम लोग जाते थे हरिनाम में, the Christians, लोग ईसाई होते थे, when they pass through, जब निकलते थे हम the लोग सामने, devotees chanting, हम लोग जब कर they रहे will do हैं like this. अपना कान बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे। You don't want to hear it. उनको भगवान का नाम को नहीं करना है। But लेकिन even if you block your ears, अगर अपने आप कान बंद भी कर लो अच्छे you will still hear the music. भगवान का नाम कान के अंदर जाएगा। And they are thinking of devotees. और वे भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, उनको देख रहे हैं They are meditating on devotees. और भक्तों को चिंतन कर रहे हैं They are getting benefit from it. कि ये लोग कौन है, तो उसको लाभ मिल रहा है। Chaitanya Mahaprabhu track, no one can escape it. चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा जाल बिछाया है उससे कोई भी बाहर निकल नहीं पाएगा, सब फंसेंगे। So perfectly designed. बहुत अच्छी सी योजना बनाई है, Therefore, इसलिए we should do it nicely. हमें पवित्र नाम का जप और कीर्तन बड़े सुंदर ढंग से करना चाहिए। The nectar of instruction. Nectar of instruction. उपदेशामृत में Srila Prabhupada Goswami said, श्री गोस्वामी जी बोलते हैं the essence सार of all advices सारी सलाह is that जो मैंने दी है उसका सार है कि one should एक भक्त को nicely सुंदर ढंग से chant the holy name of Krishna. भगवान कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। Got it? आपको मिल गया? One should nicely chant the holy name. एक भक्त को सुंदर ढंग से जप और कीर्तन करना चाहिए, ये सार है। What is nice chanting? सुंदर ढंग से जप करने का मतलब क्या है? What do we understand by nicely chanting? Nice हमारी- chanting. What is nice chanting? हमारी क्या समझ है अच्छा जप, सुंदर जप करने का? Nice chanting. Chant and hear. माता जी बोली ध्यान पूर्वक सुनना जो जप कर रहे हैं। So Papa said we need only two things. प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको बस दो बातें चाहिए, Only two. सिर्फ दो काम करना है, The tongue जीभ से, and the ear. जीभ और कान। Chant with the tongue. जीभ से जप करना है Hear with the ear. और कान से श्रवण करना है। This is said in Hawaii. ये बोला गया है, Hawaii, हवाई में कहा गया था, the US. अमेरिका में। The devotee was expressing his concern to Prabhupada. एक भक्त आया प्रभुपाद जी के सामने बहुत सारी चिंताएं लेकर। Prabhupada, प्रभुपाद I
I want to chant, but my mind is disturbing. मुझे जब तो करना है लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, मन बहुत दुष्ट है। Prabhupada said, हाँ? Devotee repeated. और बोला Srila Prabhupada was saying that my mind. प्रभुपाद जी मैं बोल रहा था कि मेरा मन ना लगता नहीं है। Prabhupada said, what about your mind? तुम्हारे मन से क्या करना है? Forget it. मन छोड़ दो। Just chant with the tongue, मात्र hear with the ear. जब करो जीवा से और कान से सुनो, बस That's all. बस Prabhupada said, that's all. That's all. बस इतना ही करना है, The tongue and the ear. जीवा और कर्ण। So that is nice chanting. So what do you think is nice chanting? और बताइए क्या होता है नाइस चैंटिंग, सुंदर जप? What is pure? क्या होता है इसमें? Okay, Krishna is always there. Krishna is always there. What? Each and every syllable should be spoken properly. Like every syllable should be spoken properly, and then we should. रत्नागिरी माता जी बोल रही है शुद्ध उच्चारण हर एक अक्षर का होना चाहिए और को सुनना चाहिए। In the 6th canto, छठवें स्कंद में भागवतम के chapter 2, अध्याय 2 text 49, श्लोक 49 in the purport, तात्पर्य में Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोले हैं since we have a healthy body now, क्योंकि अभी हमारे पास जवान शरीर है, शक्ति है, we should loudly chant the name. हमें उच्च स्वर में जप करना चाहिए Distinctly, chant distinctly. और बिल्कुल भी स्पष्ट जप करना And चाहिए hear it. और कान से सुनना चाहिए। And Vishwanath Chakravarti Thakura purport. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसके ऊपर लंबी टीका दिए हैं। Anyone who does this, अगर कोई भक्त ऐसा करता है, when the person is leaving the body, जब भक्त मर रहा होगा, Krishna will say, कृष्ण बोलेंगे this person calls my name. इस भक्त ने अपनी जवानी में मेरे नामों का उच्चारण अच्छे से किया था, Now it is my duty to protect him or her. अब मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसे भक्त की रक्षा करूं। Just see, देखिए just see, देखिए the person called my name. कि भगवान बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम जप किया था। What name? What name are we calling? तो हम कौन सा नाम जप कर रहे हैं? What name Ajamila called? What name did he call? Namabas. अजामिल ने कौन सा जप किया था? नाभास जप किया था। नाभास, Namabas. नाभास। Not Sudanam. प्रेम थे, शुद्ध नाम नहीं किया था। You see what he got? देखिए उनको क्या मिला? मात्र नाभास से। He confirmed what Vishwanath Chakravarti Thakura said. He confirmed. विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं इस बारे में। Krishna said, this person called my name. कृष्ण ने कहा है कि अगर इस भक्त ने मेरा नाम जप किया है, It is my duty to protect him. तो अब मेरा कर्तव्य है कि मुझे इस भक्त की रक्षा करनी ही करनी है। So Prabhupada said, पापा जी बोले we should call the name distinctly. हमें हरे कृष्ण महामंत्र का हर एक शब्द को And hear it. अच्छे से उच्चारण करना चाहिए और सुनना चाहिए। Krishna will not leave us again. ऐसा हम करेंगे तो कृष्ण हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। So Chaitanya Mahaprabhu चैतन्य महाप्रभु is the best friend of the whole world. वे सबसे परम मित्र हैं पूरे संसार के, सबसे सुहृद। He was the Nimai Pandit वे पहले निमाई पंडित थे who cannot be defeated by anyone, even Brihaspati. जिनको Millions of Brihaspatis. करोड़ों करोड़ों बृहस्पति भी मिलकर जिन निमाई पंडित को पराजित नहीं कर सकते थे, But लेकिन he didn't give us that. उन्होंने वो छोड़ा नहीं। He gave the holy name. उन्होंने हमको क्या दिया? भगवान का नाम। Because he knows कि उनको पता है, this is the solution to all the problems. निमाई पंडित को पता था कि मात्र भगवान का नाम ही सारी समस्याओं का हल है और कोई ज्ञान नहीं। If Namabas अगर नामाभास can deliver, उद्धार कर सकता है, what will Sudanam do? शुद्ध नाम क्या करेगा? Bhavanam, भाव नाम Premnam. और प्रेम नाम What would they do? क्या करेंगे? वो What would they do? क्या करेगा? Not just back to God, he will purchase Krishna. मात्र भगवत धाम ही नहीं जाएंगे,
हम भगवान कृष्ण को अपनी मुट्ठी में बांध लेंगे, उनको हम खरीद लेंगे, The supreme personality of God is in their hand. जीत लेंगे, कृष्ण आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। Prabhupada said, ताकि बोलते हैं you are chanting आप जब कर रहे हैं in the street. गली में Krishna is dancing on your tongue. और आप कीर्तन कर रहे हैं गली में और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं आपकी जिह्वा पर। That is what is given to us यही तो हमको दिया गया है, ये हमारे सामने है, by Chaitanya Mahaprabhu. भगवान चैतन्य महाप्रभु दिया है। So we should take it very seriously. तो हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, We should chant it, हमें जप करना होगा taste it, और इसका स्वाद लेना होगा। see how sweet it is, आप फिर देखिए कितना मधुर है ये, distribute it और फिर स्वाद लेकर इसको बांटना होगा everywhere in the world. सब जगह, पूरे संसार में, हर जगह, समस्त विश्व में। Indians are made for this business, भारतीय इस व्यापार के लिए बने थे, for the upliftment of the whole world. पूरे संसार की चेतना को विकसित करने के लिए। Because all over the world, पूरे संसार में people are unaware of Krishna. लोग कृष्ण को नहीं जान रहे हैं, So anyone who is born in India इसीलिए जो भी भारत भूमि में जन्म लिया should है attempt to broadcast the message about Gita and Krishna. उसे प्रयास करना चाहिए भगवद गीता और भगवान कृष्ण का प्रचार करने का। That is the order of Chaitanya Mahaprabhu. यह चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। This is not a new rule for the Vedic culture. ये वैदिक संस्कृति की नई भूमिका नहीं है, The rule is already there ये भूमिका हमेशा रही है। 500 years ago. 500 वर्ष पहले Chaitanya Mahaprabhu spoke of it. चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बोले थे, But all the various swamis and yogis लेकिन बहुत सारे स्वामी और योगी जो बाद में आए, who came here, जो यहाँ पर आए, they never introduced Krishna as the supreme personality of Godhead. उन्होंने कभी भी भगवान कृष्ण जो कि परम भगवान हैं, उनके अस्तित्व को लोगों को नहीं बताया। Now it is being done, और अब यह किया जा रहा है and people are accepting और लोग स्वीकार कर रहे हैं naturally. स्वाभाविक रूप से। This is a Krishna consciousness movement. यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। So, तो if everyone joins, अगर सभी लोग साथ मिलकर आएंगे, either Indian or non-Indian, भले भारतीय हो या विदेशी हो, in this movement, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में there will be one religion and there will be peace. तब एक ही धर्म होगा पूरे संसार में और समस्त जगह शांति होगी। Peace will prevail. शांति पूरे संसार में फैल जाएगी The whole world join Krishna consciousness जब पूरा संसार कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन कर लेगा and chant the holy name और पवित्र नामों का जप और कीर्तन होगा, loudly, उच्च स्वर में जप कीर्तन, very clearly, स्पष्ट कीर्तन, not to entertain people, लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं, ऑडियंस का, but to please Krishna. लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप कीर्तन करने The से whole world will become pleased. पूरा संसार प्रसन्नचित्त हो जाएगा। Because when Krishna is pleased, क्योंकि जैसे ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं, everyone will be pleased. सब लोग अपने आप हो जाते हैं प्रसन्न। This is the peace formula. यही तो है शांति का सूत्र। And Chaitanya Mahaprabhu wanted it all over the world. और चैतन्य महाप्रभु ये चाहते हैं देखना पूरे विश्व में, पूरे संसार में, The whole universe, पूरे ब्रह्मांड में let the name be chanted. भगवान के नाम का प्रचार हो। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Yes. Srila Gurudev, you told about We are working for microphone. Oh yeah, it's coming. Hare Krishna, Srila Gurudev. Thank you for the class. I wanted to ask about chanting. Like we try to finish early in the morning our rounds, 16 rounds. But I see a lot of people whole day they are chanting. Their hand is in japa being back and they are chanting.
And somebody told me that it is okay if you finish rounds in the morning, then later on, if you are talking, or it is okay, you are chanting whole day. But what I do, I try to finish my rounds in the morning, and if I'm like my mind is here and there, I never chant again. I just finish rounds, then extra rounds when I get time I do. So I'm confused. Can I do like we are talking and later rounds, not 16? But can we do like that whole day we are chanting where we are going and then we are talking, because it will be very natural. So I'm confused about that. नांगी राधा माता जी का प्रश्न है कि हम देखते हैं कुछ भक्त सुबह से लेकर शाम तक जप करते रहते हैं, यानी कि उनका 16 माला खत्म हो जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा राउंड्स जप करते रहते हैं और सारी सेवाएं और सबसे बातें भी करते रहते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना 16 माला सुबह जप कर लेती हूँ, और जब एक्स्ट्रा माला करना होता है तो मैं उसको कर लेती हूँ, लेकिन मैं जब के समय कोई और सेवा या बातचीत नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत सारे भक्त वो जब भी करते रहते हैं माला में और सेवाएं भी करते रहते हैं, तो क्या करना प्रामाणिक होगा, शास्त्रोचित होगा? Chanting, you can do the whole day. भगवान के नाम का जप 24 घंटे कर सकते हैं, हो सकता है। There is no amount of chanting which is enough. कितना भी कोई जप करे वो कभी काफी नहीं होगा। Lord Krishna said, Sadatam, Kirtan, Yantu, always chanting my glories. That is this instruction given by Lord Krishna. भगवान कृष्ण का आदेश है भगवद गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत निरंतर लगातार हमेशा उनकी महिमा, उनके नामों का गुणगान होना चाहिए। Have a minimum 16 rounds. हमारा 16 वाला जो कम से कम है should be chanted on beat. वो माला पर होना चाहिए, बीट पर। And और the extra rounds जो एक्स्ट्रा माला है which we are chanting जो हम जप कर रहे हैं while doing other things और सारी सेवाएं करते हुए may not be chanted with beat. उनको हम ऐसा भी हो सकता है कि माला भी जप ना करें। So you are driving, आप कार चला रहे हैं, you can chant, आप जप कर सकते हैं, but not with the beat. लेकिन माला को नहीं लेके कि घुमा रहे हैंडल को और जप कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। Yes, हाँ। that is not proper. वो अच्छा नहीं होगा ऐसा करना। You can chant with the mouth. आप अपने जीवा से जप कर सकती हैं। If you look at it carefully, आप ध्यान से देखिए, अगर it is more comfortable ज्यादा अच्छा तब होगा when your two hands आपके दोनों हाथ on the steering, स्टीयरिंग पर है कार की your mouth is chanting. और जीवा पे जप हो रहा है, It's more comfortable. कितना अच्छा होगा। They are struggling with the beat in the hand. और अगर आप माला पे जप करेंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग, एक हाथ से माला, Not comfortable. उसमें अच्छा नहीं होगा। Right? ठीक है ना? You are on the street distributing books. आप गली में हैं, दुकान बांट रहे हैं, You are किताब बांट meeting, रहे you are हैं, meeting people. लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, Before you meet the next person, तो आपको किसी मिलना है you can chant. तो आप जप करो पहले। But if you have the beat in the hand and the book is also in the आप जब hand, माला आपके हाथ में भी है, किताब भी हाथ में भी है, that is inattentive book distribution, inattentive chanting. यह अपराध पूर्वक पुस्तक वितरण होगा और असावधानी पूर्वक जब भी होगा, जो कि अपराध बन जाएगा। We should do things nicely. हमें हर एक चीज को जो करनी है सुंदर ढंग से करना है, हर एक सेवा को। And many things we do whimsically. बहुत सारी सेवाएं हम मनमाने ढंग से करते हैं, अपने ढंग से। Many things बहुत सारी सेवाएं we do them whimsically. हम उन्हें करते हैं मनमाने ढंग से। Intelligence means to do things properly. बुद्धि होने का मतलब है हर एक सेवा सुंदर ढंग से होनी चाहिए। Right? ठीक है ना? Yes.
Krishna. Yes. My question is, you last wrote that if everybody becomes Krishna conscious, then there will be peace. So now we see that all over the world, the Krishna consciousness has been preached, and every town and village, some people are Krishna conscious, but still you see that what is happening. So still you see that what is happening. So is it possible, because there will be some demoniac people will be there, as we see previously also in other yugas. So is there any time will become that everybody will be Krishna conscious and there will be peace? प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे गुरुदेव ने बताया अंत में कि अगर भगवान के पवित्र नाम का प्रचार पूरे संसार में होगा तो पूरा विश्व कृष्ण भावनामय बन जाएगा और शांति हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, सतयुग और युगों में भी, कि हमेशा असुर और सुर हमेशा रहे हैं। तो क्या ऐसा समय कभी आएगा कि जब हर गांव, नगर, शहर में कृष्ण भावनामय फैलेगी तो क्या पूरा विश्व शांति में हो जाएगा? क्योंकि हमेशा देवता और असुर रहते हैं। Our chanting is not enough. हमारा जो जप है वो पर्याप्त नहीं है। It's not enough. वो पर्याप्त नहीं है, Still small. बहुत छोटा है, अभी हो रहा है। Therefore, इसलिए we should increase the quality and the quantity of our chanting. हमें अपना जप और कीर्तन की गुणवत्ता और उसका संख्या को बढ़ाना होगा। Krishna is giving us signal कृष्ण हमको संदेश दे रहे हैं। with this difficult wars, varieties of wars. जो युद्ध होने वाले हैं, समस्याएं आने वाली हैं, इससे कृष्ण हमको दे रहे हैं संदेश। The signal that we should increase the quantity and the quality of our chanting. संदेश ये मिल रहा है कि हमारे जप और कीर्तन की संख्या और गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। The number of people who are chanting Hare Krishna, how many of us are chanting Hare Krishna mantra in the world? पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में कितने भक्त जप कर रहे होंगे? Out of 10 billion people. 10 अरब लोग हैं। Are we up to 1 billion? क्या 1 अरब कर रहे हैं? No. So it's small, very small. बहुत कम संख्या में लोग जप कर रहे Very हैं, small. बहुत कम संख्या है। Therefore, इसलिए we need to put more effort. हमको ज्यादा प्रयास डालना होगा गंभीरता से। We should remember हमें ध्यान रखना होगा that कि Srila Prabhupada gave us 16 now, प्रभुपाद जी हमको 16 माला दिए हैं। not as maximum. 16 माला ही नहीं करना है ज्यादा, बस It's the minimum. 16 माला कम से कम दिए। So 16 16 माला is for fallen people. 16 माला पतित जीव या पतित भक्त के लिए है। According to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार Anyone who cannot chant 64 is fallen. अगर कोई 64 माला जप नहीं कर सकता है तो वो पतित जीवात्मा है। So Prabhupada, so we are lazy people. तो प्रभुपाद देखिए कि हम लोग आलसी हैं। It's okay, 16. ठीक है, कम से कम 16 करो। So 16 is not be, it's not be, yeah, I've done 16, finish. तो इसका अर्थ है कि हाँ 16 माला हो गया, बस आज के लिए खत्म। No, नहीं, more, अधिक करना होगा, more, और अधिक, the better. उतना अच्छा होगा। So let us increase. तो बढ़ाएं संख्या अपनी, The demons are increasing, क्योंकि आसुरिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, but the devotees are not increasing. लेकिन भक्त नहीं बढ़ रहे हैं। Means what? इसका अर्थ क्या है? If someone is chasing you, अगर कोई आपके पीछे पड़ गया है is still running, और आप दौड़ रहे हैं and you are stopped running, और आप रुक गए, means what? इसका अर्थ क्या है? I'm going to catch you very soon. आपको पकड़ लेगा, दबोच लेगा। Therefore, इसलिए let us increase हमको भी तेज दौड़ना होगा, बढ़ाना होगा, quality and the quantity. गुणवत्ता और संख्या दोनों, There will be peace तब शांति फैलेगी। all over the world.
पूरे विश्व में Hare Krishna. Yes. बगल में आपकी माता जी Hare Krishna Maharaj. Sorry. My question was that Shukracharya was so knowledgeable and so strong, and he was giving knowledge to so many peoples, and he knows the glories of the holy name. But still, why he have not followed it? Why didn't he chant? माता जी का प्रश्न है कि श्री शुक्राचार्य जी कवि हैं, महान ज्ञानी हैं, पंडित हैं, गुरु हैं असुरों के, और उनको पूर्ण ज्ञान है भगवान के नाम की महिमा का, फिर भी वे स्वयं क्यों भक्त नहीं है, स्वयं क्यों नहीं जप कर रहे हैं उस नाम का? That is his karma. ये कर्म का खेल है, ये उनका कर्म है। Padma Purana said, पद्म पुराण में कहा गया है, one who has not chanted the holy name in his past life, जिसने पिछले जन्म में भगवान के नाम का अभ्यास नहीं किया है जप करने का, will not chant it this lifetime. वो इस जन्म में भी जप नहीं करेगा, उसकी जिह्वा नहीं करेगी। So Vrindavan Das Ekura said, वृंदावन ठाकुर जी बोलते हैं, one who is chanting the holy name जो इस जन्म में जप कर रहा है is very, very, very fortunate. वो बहुत 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 अत्यंत सौभाग्यशाली है। So you are fortunate. तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। Please, कृपया let us appreciate our fortune अपने भाग्य की हम सराहना करें, by expanding it. इस सौभाग्य को दूसरों को देकर बड़ा करें। Yes, sir. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. For example, you offended me, and now as you offended me, and you have become a pure devotee, chanting seriously, but I have not yet forgiven you. So, how does it? How will my chanting affect? माता जी का प्रश्न है, हमने एक भक्त के प्रति अपराध किया है और वो भक्त अब शुद्ध भक्त बन गया है, और हमने अब तक उनको माफ नहीं किया है, हम भी जप कर रहे हैं, तो इसका असर क्या होगा, कैसे हम बनेंगे भक्त? The question was, I have offended her. I have offended her, and she has not forgiven me yet. But I am chanting, and she is not chanting. Or she is chanting, and I am chanting. What will be the benefit? The question was, someone offended her. Not, he said, but she said him as an example. The person has like a spiritual master Purity. and a pure devotee, thank you. And the person, and she has not forgiven the person that she's chanting. How can a chanting become effective? Was that the question? Okay. Okay. तो Thank you. प्रश्न सुना थे, दोबारा बोलूँगा हिंदी के लिए कि मैंने एक भक्त को अपराध किया है और वो भक्त अब शुद्ध भक्त बन गया है, लेकिन मैंने अब तक उसको माफ भी नहीं किया है और मैं जप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब मेरा जप मेरा उद्धार कैसे करेगा? मैंने माफ भी नहीं किया है और वो बन गया है शुद्ध भक्त, अब तो मुझे कर्म मिलने वाला है ना फल। There are two things here. दो बातें होंगी, There are two things here. दो बातें हो रही हैं। I have offended you, मैंने आपके प्रति अपराध किया था and और you have not forgiven me. आपने मुझको क्षमा नहीं किया है, But I have gotten some position. लेकिन मुझे अब कोई बड़ा पद मिल गया है। That does not mean I'm a pure devotee yet. इसका अर्थ ये नहीं कि हम बन गए शुद्ध भक्त। Have position, that's a different thing.
हमें पद मिल गया है बस। Position is different from purity. शुद्ध बनना और पद प्राप्त करना दोनों अलग है। But लेकिन if I become really a pure devotee, अगर मैं वाकई में बन गया हूँ शुद्ध भक्त, then तब you are holding grudge against me, work against you, not me. अब जितना आप अपने हृदय में मेरे प्रति बुरी भावना रखती रहोगी उतना आपको फल मिलता जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, आपको मिलता जाएगा। That is the danger of holding grudge. यही तो बहुत खतरा है अगर हम किसी भक्त के प्रति, किसी के प्रति भी अगर हम बुरी भावना मन में बनाए रखते हैं। His Holiness Patita Maharaj explains. परम पूज्य भक्त तीर्थ महाराज इसको बताते हैं विस्तार से। Grudge, ये बुरी भावना fire. ये आग के समान है। So a person who is holding fire तो अगर कोई मान लीजिए आग का गोला हाथ में रखे and the one who is not holding, और जो आग का गोला हाथ में नहीं लिए है, who is better? दोनों में से कौन अच्छा है? A person is not holding is better. जिसका हृदय साफ है, He's जब not feeling the heat of the fire. क्योंकि उसको आग के गोले से कुछ असर नहीं होगा। The person who is holding fire will be burnt. लेकिन जो आग अपने हाथ में लिए है उसका हाथ जल जाएगा। Therefore, इसलिए it is compulsory ये अनिवार्य है for us हमारे लिए to not keep grudge. कि हम किसी के प्रति भी कोई भी बुरी भावना, ईर्ष्या, घृणा हृदय में ना रखें कतई भी। One day I told one devotee, एक दिन मैंने बोला एक भक्त को, you are complaining about this devotee तुम शिकायत कर रहे हो इस भक्त के बारे में and you are not going to the temple. और तुम खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, You have no service in the temple. तुम्हारे पास कोई मंदिर में सेवा नहीं है। The devotee you are complaining and you are complaining about. और जिस भक्त के बारे में तुम शिकायत कर रहे हो बहुत सारी, He has a service in the temple. वो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, He's doing the service अपनी regularly. सेवा अच्छे से कर रहे हैं, He's visiting holy land, वो मंदिर जा रहे हैं, visiting holy places, तीर्थ स्थान जा रहे हैं, associating with holy people. भक्तों को संग ले रहे हैं, He's chanting. जप कर रहे हैं, And you are complaining about the person. अब तुम ऐसे भक्त के बारे में शिकायत कर रही हो, What the person is doing, you are not doing any of them. अब तुम वो कुछ भी नहीं कर रही हो जो वो भक्त कर रहा है। So don't you think you are doing something wrong? तो आपको लगता नहीं है कि असली में गलत कौन है, तुम कि वो? Make sense? समझ में आया? Yes. Yes, right. आगे दोनों है। Thank you, Maharaj, for wonderful Gata. You explained very nicely how we should increase the quality of our chanting. My guess is that that doesn't apply only to japa, but also when we chant the holy name in public. So, also, it says that there is no rules and regulations to chant the holy name. Nowadays, we have this performance of many huge events in which we use different ways to express the holy name, and sometimes the purity is being compromised. So, what is your opinion about it, and how much serious sadhaka who wants to really keep serious in terms of the chanting should participate in those events? प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया आज कि हमें नाम जप की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, अपना कीर्तन और नाम जप हर में सब चीजों में। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम लोग आज ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त और समुदाय कि नाम का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े कीर्तन परफॉर्मेंस हो रहा है ताकि नाम पूरे संसार में फैल सके। लेकिन हमें देखा जा रहा है कि गुणवत्ता पे, शुद्धता पे उतना बल दिया जा रहा है। तो किस प्रकार हम अपनी साधना को या शुद्धता को बनाए रखें कि हम उससे प्रभावित ना हों, और हमें भी इस प्रकार के बड़े बड़े इवेंट्स में कितना भाग लेना
चाहिए। There are many musicians around the world who are staging programs. बड़े बड़े संगीतकार हैं पूरे संसार में जो बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े स्टेज कर रहे हैं। And they get thousands of followers. हजारों लोग उनके अनुयायी होते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको देखते हैं। Only sense gratification. मात्र इंद्रिय तृप्ति। So, लेकिन तो if we are doing the same thing, अगर हम भी यही करने लगे, what is the difference? अंतर क्या बचा इन दोनों में? The same thing. दोनों बराबर। We are going to have a stage program. हम एक बड़ा स्टेज इवेंट करने वाले हैं। And we ourselves have not chanted this year. हमने अपना 16 माला जप नहीं किया है अभी तक। So what kind of chanting we are doing on stage? तो हम कौन सा नाम जप कीर्तन करने वाले हैं स्टेज में? Useless. व्यर्थ, निरर्थक। Big festivals. बड़े बड़े त्योहार, उत्सव, Many people come. बहुत लोग आ रहे हैं, No substance. कोई गुणवत्ता नहीं है। What is the difference? तो अंतर क्या हुआ? The same thing for sanctification. दोनों बराबर हो गए, वो भी इंद्रिय, हम भी करें इंद्रिय। We don't need all these things. हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। We need a festival हमें चाहिए उत्सव that will purify the heart. जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सके। When जब our festivals हमारे त्योहार are really spiritual, जब वाकई में आध्यात्मिक होंगे, not a social activity. मात्र एक सामाजिक कार्य नहीं होगा। I mentioned the other day, हमने कहा था वो दिन, I was asking one devotee, मैंने ये बात को पूछा, who have been His Grace, Amishwara Prabhu. I speak for everyone, our hearts swell just to see you. Let it Please let me not interrupt you. That is your cosmic mercy. ये आपकी कृपा है। And, I wish we will have many devotees like Sameshwar Prabhu. मैं चाहता हूँ कि हमारे आंदोलन में और भक्त हों श्रीमान रामेश्वर प्रभु की तरीके। It is a good thing I cannot hear. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। Because I have no idea why. I am your obedient student. He is my teacher from Bhakti Shastra. गुरुदेव उनके शिक्षक हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके शिक्षक हैं। I'm not a teacher. I only facilitated. मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं तो बस सेवा किया हूँ उन्हें। So we're making big festivals तो हम बड़े बड़े त्योहार मना रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं। for social entertainment. ये मात्र हम सामाजिक मनोरंजन करने के लिए, Does not purify the heart. लेकिन ये सारे उत्सव हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं। People attend these programs, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, but without the sangha, संग, no association, लेकिन कोई संग नहीं मिल रहा भक्तों का, because there's no spiritual substance. क्योंकि भक्तों में कोई आध्यात्मिकता नहीं है। Association means, संग का मतलब होता है, Prabhupada said, प्रभा जी बोले हैं, the essence of association is to hear. किसी भी भक्त संगति का सार है उस भक्त से श्रवण करना। So when we gather, तो जब हम आपस में आगे मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, what do we hear? क्या सुनते हैं? सेल्फी, सेल्फी ले, Everywhere. हर जगह देखिए आप, और लोग वीडियो ले रहे हैं, Nobody hears. मोबाइल फोन बातचीत चल रही है, सेल्फी हो रही है। Look at our parikramas. देखिए अब परिक्रमा में हम लोग Every day. रोजाना नौवीं परिक्रमा Beat में here, cell phone here. एक हाथ में माला है, एक हाथ में फोन है, दोनों चल रहा है। In the middle of kirtan, कीर्तन के बीच में बैठ के don't jump. जब चल रहा है, Inattentive chanting, inattentive kirtan. असावधानी पूर्वक, अपराध पूर्वक जप और वैसा ही अपराध पूर्वक कीर्तन। We have 2 ears. दो कान तो हैं, We don't hear 2 things at a time. लेकिन हम दो बातें नहीं सुनते एक साथ, Only one thing. एक ही बात सुन पाएंगे। And to hear,
और श्रवण करने के लिए we need concentration. हमें चाहिए ध्यान, एकाग्रता। Where is the concentration? Where कहाँ is है वो एकाग्रता हमारे पास? Where? कहाँ है? Our attention are divided. हमारी एकाग्रता छिन्न भिन्न हो चुकी है बहुत डायरेक्शन में। So it's adulterated. इसलिए हम लोग बन गए हैं मिश्रित भक्त। So it's just another social, police social activity in the name of Krishna consciousness. तो मात्र कृष्ण भावना मत का प्रचार करने के नाम पे एक पॉलिश सामाजिक मनोरंजन कार्यक्रम रह गया है हमारा ये प्रचार। Last year, अंतिम वर्ष, पिछले वर्ष I attended one program. मैं एक कार्यक्रम किया। The Grace Prabhu, Swami Sharif also was there. श्रीमान रामचंद्र भी थे उसमें। One night, एक रात्रि की बात है, I saw मैं देखा 2 a.m. 2 बजे सुबह, I was doing japa, 2 a.m. मैं 2 बजे सुबह तड़के जब कर रहा I था। saw 30 boys and girls, 30 30 लड़के लड़कियां, boys and girls. लड़के लड़कियां, They didn't sleep. रात को सोए नहीं, They were not doing kirtan. वो कीर्तन नहीं कर रहे They थे, were not doing japa. जब नहीं कर रहे They थे, were not doing reading. वो पढ़ नहीं रहे They थे, didn't sleep. वो सोए नहीं, Throughout the whole night, वो रात्रि they were sitting there. वहीं बैठे थे। What did they do? क्या कर रहे थे वो लोग? Is that a sangha? क्या ये भक्त संगति थी? Do you call that sangha? इसे क्या I बोलेंगे? saw. मैंने अपने आप को देखा, I was looking at them, मैं उनको देख रहा था, thinking, सोच रहा था will they feel sorry and deep here? क्या उनको कुछ कुछ उनके मन में शर्म आएगी? Thank you. और वो वहां से छोड़ के चले जाएंगे They didn't. हमको देख के? They didn't. नहीं, उनको शर्म नहीं आएगी। They saw me, I was chanting somewhere there, ये सारे लड़के लड़कियां हमको देखे कि हम जब कर रहे थे and they were very busy और वो सब व्यस्त थे, having their discussion. अपने सारी बातचीत उनकी चल रही थी। Are they talking about Krishna? क्या उनकी बातचीत कृष्ण कथा हो रही थी क्या? I don't know, I'm asking. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या ये कृष्ण कथा थी? कृष्ण कथा, Boys and girls, लड़के लड़कियां the whole night, पूरी रात्रि talking, बातचीत कर रहे हैं, not japa, जब भी कर रहे हैं, not kirtan, कीर्तन भी नहीं, not reading. पढ़ भी नहीं रहे हैं। consciousness. What are they doing? क्या कर रहे हैं? Krishna consciousness? ये है कृष्ण महानवत क्या? No. नहीं। And और so I was observing them. मैं सबको देख रहा था, I was thinking, will they see me and feel sorry and leave the place? तो मैं ऐसा सोचा कि शायद ये लड़के लड़कियां हमको देख के शर्म के मारे छोड़ चले जाएंगे, I did not exist for them. लेकिन मैं उनके लिए मान नहीं रखता। Then फिर I was thinking also, मैं सोच रहा था, do they have parents क्या इनके माता पिता हैं who are also in this program? जो इस प्रोग्राम में आए हुए हैं संघा में, And throughout the whole night, और पूरी रात्रि they didn't see their daughters and boys? क्या माता पिता ने अपने पुत्र पुत्रियों को देखा नहीं पूरी रात्रि? How did they react to that? तो अब उनको क्या लगा होगा? Normal. कुछ नहीं, सामान्य। Normal. उनके माता पिता भी सामान्य थे, But it was called Sadhu Sangha retreat for 4 days. लेकिन इसको नाम दिया गया था 4 दिन का साधु संगा रिट्रीट कार्यक्रम। The Sadhu Sangha, ये साधु संघ है, thousands of people were there. हजारों लोग थे, The boys and girls लड़के लड़कियां नौजवान together साथ में the whole night पूरी रात्रि without their parents. बिना माता पिता के, Their parents didn't check to know what we're doing. और उनके माता पिता भी नहीं चेक कर रहे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। This is ISKCON program. ये हमारा इस्कॉन का प्रोग्राम है। Is that Sadhu Sangha? क्या इसे बोलते हैं साधु संघ? Is that preaching? क्या ये प्रचार कार्य हो रहा है? Social gathering. ये बस एक सामाजिक मनोरंजन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। Spiritual gathering. आध्यात्मिक संघ, It's like the soul bathing. उसमें आत्मा स्नान करेगी, We came together to bathe our soul साथ में आएंगे अपनी आत्मा का स्नान करवाने के लिए, to the kirtan, कीर्तन के द्वारा, the pravachan, प्रवचन के द्वारा, association, संग लेंगे, seeing devotees from different
places of the world. पूरे संसार से भक्त आएंगे, उनसे मिलेंगे Is interacting with each other. और एक दूसरे से बातचीत करेंगे See what we are doing in different places और पूछेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पर, and encouraging each other. और एक दूसरे को उत्साह प्रदान करेंगे। That was not there. ये वहाँ नहीं था, No Japan. ना जब, No Japan. कोई जब नहीं। That was disgusting. ये बिल्कुल अत्यंत हीन बात थी, So घृणा। I don't consider it sadhu sangha. तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता साधु संघ। It's a social activity. ये बस एक सामाजिक में इकट्ठा हुए। Social activity doesn't have the potency to purify us. सामाजिक कार्यक्रम में शक्ति नहीं होगी हमारे हृदय को शुद्ध करने की। We should come together. हमें साथ आना चाहिए, Hear about Krishna. श्रवण करना चाहिए कृष्ण के बारे में, Hear about Krishna. कृष्ण के बारे में सुनना होगा असली में। Chant Krishna's name together. और भगवान कृष्ण के नामों का जप करना होगा, कीर्तन करना होगा From the heart. हृदय की गहराई से। The soul will be very, very pleased and satisfied. तब हमारी पूरी आत्मा प्रशीतति प्रसन्न हो जाएगी। That is association. इसे बोलते हैं असली संग। That is what Prabhupada gave to us. और प्रभुपाद जी हमको ऐसा संग देकर गए हैं, Let us maintain it. हम इसको बनाए रखें, पालन करें इसका, The whole world will benefit. तब जाकर पूरा संसार इससे फायदा होगा, We will benefit. We will हमको भी benefit. मिलेगा फायदा। Right? ठीक है। Yes, last question before we go. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for the lecture. So you've been emphasizing on chanting, Yes. and practically speaking, in our environment, chanting might be divided into japa, and then the chanting in the temple, and then Mangala Sankirtan, and then we have our Kirtan Melas. And recently the Kirtan concert has been introduced, and it's spreading very fast. So you are talking about Kirtan should not be used for entertainment. It so happens that sometimes to get people who are not from the Indian background, I mean in India if you just get characters and Mridanga, the whole place is filled up. But in the West sometimes it's difficult to get people to come around and join the Kirtans in the temple. And so for this reason the Kirtan concerts have been introduced to get people who are not affiliated with ISKCON to just buy tickets and come in, and sometimes they come with the mood of entertainment, like you're saying. But somehow or the other, they chant the holy name. And then there is a saying that there are no hard and fast rules for chanting the holy name. So the devotees who are trying to avoid this, this rule, that rule, that rule, they organize the kirtan outside the temple premises so that anybody can come in and can dance the way you want to dance, sing the way you want to sing. So don't you think that this is a strategy to get people from non-Indian background to at least have some initial taste for the holy name? Like the story in the Charitamrita when the servants of the Kazi were joking with the holy name. Some of them call themselves Krishna Das, some call themselves Rama Das, and by so doing they became purified also. So what is your opinion about this? How do you fit this into this principle that there are no hard and fast rules for chanting the holy name? Hare Krishna. श्रीमान विष्णु जी का श्री गुरुदेव से उनका ओपिनियन जानने के लिए प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारत में तो करताल मृदंग लेके बैठ जाओ, बहुत से लोग आ जाएंगे, लेकिन पश्चिम देशों में, विदेशों में, पाश्चात्य देश में ऐसा नहीं संभव है। इसलिए भक्त लोग क्या कर रहे हैं कि वे कीर्तन कंसर्ट या कीर्तन मेला इस प्रकार से कुछ कार्यक्रम ऐसे कर रहे हैं आयोजित, जहां पर कि बहुत सारे लोग टिकट परचेज करके आ सकें, आकर्षित हों, नृत्य करें, कीर्तन सुने, क्योंकि भगवान का नाम जप करने में, कीर्तन करने में कोई कठिन नियम नहीं बताया गया है शास्त्र में, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, और इससे एक उनको स्वीकृति मिलेगी। तो अगर इस प्रकार के आयोजन होंगे तो
तो कम से कम लोग आएंगे और इसी बहाने भक्त बनेंगे पाश्चात्य देश में। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? There is no hard and fast rule for chanting. हाँ, ऐसा बोला गया है शिक्षाष्टकम में कि कोई कठिन नियम नहीं है ज्यादा भगवान का नाम जप और कीर्तन करने में। That is a preaching tactic. यह प्रचार करने के लिए एक तरीका है शुरुआत में। That is for encouraging people. ये मात्र शुरुआत में उत्साह देने के लिए है। When people come in, लेकिन जब लोग आपके आ जाएंगे आपके पास, we will tell them there are 10 offenses to avoid while chanting the Holy Name. तब उनको हम तुरंत बताते हैं 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं जो कि हमें नाम जप में नहीं करने होते हैं। It is not cheating. ये कोई धोखा नहीं कर रहे हैं। There is a way we deal with the child. There is a way we deal with the adult. हम एक छोटे बच्चे से अलग व्यवहार करते हैं, एक वयस्क व्यक्ति से अलग व्यवहार करते हैं। The adult, the children, छोटा बच्चा, we encourage them. उसको उत्साह देते हैं। But when they become mature, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, we have to give them different principles. तब उनको अलग प्रशिक्षण देना होता है। That is what we are doing. यही हो रहा है। That is different from ये अलग होगा continuing to keep people as children and babies. When will they become adults? लेकिन अगर हम बच्चे को बच्चा ही बनाए रहेंगे तो बच्चा बड़ा कब होगा? When? कब? If you don't treat them as adults, then we are cheating them. अगर हम एक बच्चे को प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं वयस्क व्यक्ति होने के लिए, तो हम बच्चे के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। Better take them as adults and train them properly. ज्यादा अच्छा होगा कि उनको हम माने कि वे वयस्क हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं और उनको वैसा ही प्रशिक्षण दें। When Ajamila chanted Namabas, जब अजामिल ने नाम हाथ जप किया, he didn't go back to God. तब धाम नहीं गया वो। He has to go and follow rules and regulations for chanting. अजामिल जब उसको दूसरा जन्म मिला, तब उसको सारे नियम कानूनों का 12 साल तक पालन करना पड़ा। We are doing just that. और हम लोग वही कर रहे हैं। So, तो yes, we should stage the program. हाँ, हमें इस प्रकार के कीर्तन कॉन्सर्ट करने चाहिए। We ourselves, हम खुद स्वयं who are staging these programs, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम का, we should do our sincere and first before we go on stage. कम से कम जो हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम का, उनको तो 16 माला जप करना चाहिए पहले अच्छे से। And while we are there, जब हम वहाँ हैं, we should sing purely हमको शुद्ध नाम जप कीर्तन करना चाहिए from the heart. अपने हृदय से। Then तब the audience will be affected. जितने वहाँ पर लोग आए हैं वो सब लोग उससे होंगे प्रभावित। Prabhupada told the devotee प्रभुपाद जी बोले भक्त को who wanted to entertain the audience. जो कि लोगों की प्रसन्नता के लिए गाना चाह रहा था, So the Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोले no, नहीं, chant for Krishna. कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करो। When Krishna is pleased, जब कृष्ण हो जाएंगे, they will be affected. अपने आप सारे लोग हो जाएंगे प्रभावित। This is what Prabhupada gave to us. यह हमको दिया है श्री प्रभुपाद जी ने। We should do it nicely. हमें इसको अच्छे से करना चाहिए। Then तब we will expand potently. हमारा विस्तार होगा शक्ति संचार के साथ। We should be pure in our preaching. हमें अपने प्रचार में शुद्ध होना चाहिए। That the system we will devise to get people should not dilute the substance. तो जो हम अलग अलग नियम तरीके निकाल रहे हैं प्रचार करने के लिए, उससे हमारी शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। Then तब we are bona fide representatives. तब हम कहलाएंगे प्रामाणिक प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा का। As it is. यथारूप Means का मतलब है we look at the situation, हम डिटेल चेक करेंगे, we look at the environment, हम माहौल देखेंगे then we present our Krishna consciousness और माहौल देख के वैसे ही हम भक्ति को लगाएंगे, without diluting it. लेकिन भक्ति के सिद्धांत की शक्ति को कम नहीं करेंगे। That is as it is. इसे बोलते हैं
यथारूप and everyone will benefit. और सब लोगों को इससे फायदा मिलेगा। Srila Prabhupada ki jai. His Grace and Ishwara Prabhu ki jai. Nitai Gaur Premanand. All glory is the Son of devotee. Panchakalpataribhascha Kripasadivasaya Patitanam Pavivyo Vaishnavyo Namo. Tomorrow class will be at 10 a.m. at Mayapur Institute. कल क्लास होगी सुबह 10 बजे।